السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول. آج آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ پی ایم ایل این نے ود ان دا اسمبلی کے فلور پہ تو انہوں نے بالکل بھی احتجاج نہیں کیا، لیکن پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر آپ کو ریلیاں اور نعرے سنائی دیے گئے. کیا یہ چینج آف پالیسی ہے؟ اور میمو گیٹ اسکینڈل اور فیملی گیٹ اسکینڈل جیسے ایشوز آنے کے بعد جو عوام کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیخ روہیل صاحب اور یاسمین رحمان صاحبہ موجود ہیں پی ایم ایل این سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ آپ دونوں کو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میم آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، جو بھی اسکینڈل آتا ہے وہی ڈسکس ہوتا رہتا ہے، پھر اسی کی ہیئرنگز ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم سپریم کورٹ میں دیکھیں تو مسنگ پرسنز کا کیس میں بھی اب تھوڑا سا سٹمپ ہو گیا ہے اور اب ارسلان افتخار صاحب کا کیس وہ سننے میں زیادہ آ رہا ہے. جب میمو گیٹ اسکینڈل تھا تو پھر روٹی کپڑا مکان اگنور ہو گیا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب اگر کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی اسکینڈل ہوتا ہے تو عوام کے ایشوز آپ لوگ کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ یہ ایکچولی ایشوز ہیں یا پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں آپ لوگ خود یا کوئی اور؟ نہیں دیکھیں بطول، ہم ایشوز کو ایڈریس تو کرتے ہیں. آج اگر آپ آج کل تو خیر بجٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ بجٹ سیشن ہے، لیکن اس کے دوران بھی جو بھی ممبرز بات کرتے ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کی بات، عوام کی بات، آج لوڈ شیڈنگ کی کافی ممبرز نے بات اٹھائی، تو یقیناً قومی اسمبلی میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا. جو یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، سینسیشنلزم آ جاتا ہے اور وہ اوورٹیک کر لیتی ہے اور باقی عوام کی ایشوز پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیا کی جو سٹوریز ہیں ان سے نظر آئے گا، کیونکہ آبویسلی میڈیا گھر گھر پہنچتا ہے، ہماری آواز تو گھر گھر نہیں پہنچتی. اور پھر جو جوڈیشری ایشوز یہ آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ کی حالانکہ آپ کی آواز تو گھر گھر پہنچنی چاہیے، کیونکہ ووٹ تو گھر گھر سے آپ کو ملتا ہے، میڈیا کو تو نہیں ملتا. یقیناً وہ پہنچنی چاہیے ہماری آواز، لیکن سم آف دا ادر ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا سینسیشنلزم میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. ایسی خبریں جس میں کرپشن ہو گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور پھر سپریم کورٹ ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے اور میڈیا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہے. تو میڈیا نے کس دن کون سا دن ہے؟ آپ مجھے کوئی پروگرام گنوا دیں جس میں عوام کا کوئی ایشو لے کے بیٹھے ہوں کہ جی اس کا کوئی ریکمنڈیشنز دیں، حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں، اپوزیشن سے پوچھیں کہ آپ لوگ پنجاب کے بڑے صوبے میں کیا کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ میڈیا کو کوئی دلچسپی ہے عوام کے ایشو سے. وہ سینسیشنلزم اور ایک ٹھیک ہے بہت بڑا یہ جو المیات ہیں جو ارسلان کیس کے حوالے سے یا مختلف اس طرح کے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے، یہ بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک پوائنٹ ریز کرنے دیں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اگنور کرتی ہے عوامی ایشوز، لیکن آپ نے اس میں سپریم کورٹ اور میڈیا دو اور ایلیمنٹس شامل کر دیے. مطلب جتنی اتھارٹیز ہیں پاکستان میں، جتنے محکموں کے جتنے سربراہ ہیں، وہ سارے عوامی ایشوز کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے تو دیکھیں ابھی 1 سال رہ گیا جا کے ووٹ لینا ہے عوام سے، تو وہ یقیناً عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بھی پورا وہ کوشش کرتے ہیں اور ان ایشوز کو ریز کرنے کی پارلیمنٹ میں بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی آواز کو اس طرح نہیں پہنچایا جاتا، میڈیا اس طرح نہیں ان کی آواز گھر گھر پہنچاتا جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے. میں سمجھتی. ٹھیک ہے، مجھے شیخ روہیل صاحب کی طرف جانے دیں. شیخ صاحب، یاسمین صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ نہ سپریم کورٹ میڈیا کے ساتھ ملا ہوا جس طرح انہوں نے فکرہ کہا ہے، اور حکومت ویسے سیریس نہیں ہے عوام کے ایشوز حل کرنے میں، تو پھر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگوں نے تھوڑا سا لیٹ ریلیاں نکالنی نہیں شروع کی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ دے نہیں سکتے تھے. مطلب جو بھی آپ لوگوں کا مینیفیسٹو، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز تھی، وہ تھوڑا سا لیٹ شروع نہیں ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ ذرا تھوڑا سا آج بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا تو میں اس پہ روشنی تھوڑی سی ڈال دوں. دیکھیے بدو، اس میں آپ اگر 90 کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ادوار میں انڈائریکٹلی پیچھے بیٹی فورسز نے مسکون نہیں آنے دیا. مار داڑ کی سیاست آپ کے سامنے، کسی کے خلاف ایشو کھڑا کر دیا، کبھی لانگ مارچ شروع کر دیا، کبھی شارٹ مارچ شروع کر دیا، تو حکومتیں جاتی رہی. اور اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں سارے معاملات، اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر کوئی ڈکٹیٹر آ گیا، اس نے آ کے پھر 11 سال اپنا ایک آرام سے کام کیا اور ملک کو پھر دلدل میں ڈال کے واپس چلے گئے. اب یہاں پہ یہ بات منطق میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ دیکھیے چھوٹی سی ایک میں مثال دیتا ہوں جس میں فخر کرتی ہے پیپلز پارٹی کہ 5واں بجٹ ہم نے پیش کر دیا. 5واں بجٹ پیش کرنے کا مطلب ہے کہ 4 سال آپ نے گزار دیے، 5واں بجٹ آپ نے پیش کر دیا. جس شخص نے بجٹ پیش کیا 5واں، اس کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. چلیے ہو گیا تعلق، اس کو فائنانس منسٹر کہتے ہیں، وزیر خزانہ کہتے ہیں. 5ویں بجٹ میں بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہمیں یہ سب کچھ ویسے ملا. 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر وہ شخص
जो इस बात का जिम्मेदार है। मुझे शेख साहब, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, मैंने काफी हद तक आपसे एग्री भी किया, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि 5 साल गुजरने के बाद अगर आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया और वो कह रहे हैं कि आपका काम तो वैसे भी उनकी टांग खींचने का, मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि आप लोग अवामी इश्यूज को कितना एड्रेस कर रहे हैं? मैं आप वही बताना चाह रहा था कि देखें, बात ये कि आप अगर असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि 4 साल 4.5 साल में कौन सा ऐसा इशू है जो इस मुल्क के अवाम भुगत नहीं रहे और हमने उसको फ्लोर ऑफ द हाउस वहां पे उठाया नहीं है। आप एक एक करके पूछिए कि मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। अब ये काम गवर्नमेंट का, हमारा काम, अपोजिशन काम है निशानदेही करना, गवर्नमेंट का काम है उस पर अमल करना। एनर्जी क्राइसिस अगर आप 4 साल पहले शुरू करते तो आज तक आप किसी मुकाम पे पहुंचे होते। अगर आप अपने रेलवे को दुरुस्त करना चाहते तो ये तो 4 साल पहले से चीख रहे हैं हम। और अगर करप्शन पे आप काबू पा लेते तो ये कभी भी पिछले साल में ये जो आपकी स्ट्रैटेजी में, अब जो आपकी बात समझ में आ गई, ये जो आपकी स्ट्रैटेजी में आपकी बात इससे चेंज क्या आएगा? सोल्यूशन की बात कर रहे थे, मुझे बता दें इससे सोल्यूशन क्या निकलेगा? इससे चेंज, फिर मैं आपको एक बात करूं, सड़क पे आने के बाद भी हम एक हद तक करेंगे। उस जो फोर्सेज हमसे ये तवक्को करती हैं कि हम 90 की दहाई में चले जाएंगे और तोड़-फोड़ शुरू होगी, वो ऐसा नहीं करने देंगे। हम जो भी करेंगे जमहूरियत के अंदर रहते हुए हमारा ये हक है कि हम अपना एहतजाज असेंबली के अंदर भी करें और असेंबली के बाहर भी करें। अच्छा, क्या आप दोनों आप दोनों से सवाल है, चाहे जो मर्जी पहले जवाब दे दे, आप दोनों मुझे बताएं कि कौन सा एक ऐसा सिंपल या एक सिंगल इशू है पाकिस्तान के जो आप दोनों को, जिसपे आप मुत्तफिक हो कि हाँ ये वाकई हमने सॉल्व किया है, और एक अवामी इशू, कोई एक बता दें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड थी सूबों की, कि सूबों को उनकी खुद मुख्तारी दी जाए, उनको उनकी ऑटोनॉमी दी जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाए, और वो अपने जो इश्यूज हैं खुद रिजॉल्व करे, अपना जो फैसला साजी है वो खुद करे। मैं समझती हूँ जैसे मैम अगर सरायकी सूबा बनता है, मेरे घर में बिजली नहीं है, तो मैं सरायकी सूबे का क्या करूँ? देखें आप ओवरऑल आप बलूचिस्तान की महरूमियाँ अगर देखें, बलूचिस्तान की आप महरूमियाँ देखें, एक मैं लुकमा देता हूँ, नहीं आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, बलूचिस्तान का आपके सामने क्या? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान की लॉन्ग टर्म डिमांड थी कि उनके अपना बजट हो, और अब सूबों के पास इख्तियार 2 साल से है, आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद वो बिजली पैदा करे। बलूचिस्तान ये सूबों को 18वीं तरमीम से पहले भी इख्तियार था, मुझे इनका जवाब दे लेते थे, 18वीं तरमीम से पहले भी इख्तियार, किसी ने नहीं रोका था कि वो बिजली की जनरेशन ना करे। 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल अब सूबों के पास पूरा इख्तियार है, तो अपने डैम्स बनाएं। 18वीं तरमीम में पूरा जो अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शेख साहब मेरे साथ कॉल पे हैं जावेद अख्तर भट्टी साहब, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। जावेद साहब, आपके एहतजाज के क्या हुआ? आपको तो PMLN भी ज्वाइन करने वाली थी, कुछ हुआ? नहीं, PMLN ने तो किया, एहतजाज तो हमारा बहुत भरपूर था, देखा आपने जो है, और मीडिया में उसको कवरेज भी दी। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या हुआ इस एहतजाज के बाद? देखिए, हमारे यहाँ जो तरीकेकार है उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं हुआ। उस गवर्नमेंट को जो 4 साल से हम कोशिश कर रहे थे, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए जो है ये किया गया जो है। अब आपको पता है, ये भी जो है आपने जो है पुरतशद्दुद नहीं था, बिल्कुल पुरअमन था। तो हम दुआ करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ आ जाए। एहतजाज और एहतजाज के बाद दुआ, और उससे आगे? जी देखिए, उसके बाद तो फिर यही है, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कभी पुरतशद्दुद होना नहीं चाहती, लेकिन एक हर चीज की एक हद होती है। अच्छा, वरना आप भी पुरतशद्दुद हो जाएंगे? नहीं, हमारी कोशिश या ख्वाहिश है कि ये ना हो, लेकिन तांगामद बजांगमद बाकी जगहों पर, बाकी शहरों में बिजनेस कम्युनिटी ही पुरतशद्दुद हुई तो है। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ, जब CNG स्टेशन बंद हो गए थे, जब पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे, तो आप लोगों का ज़मीर भी तो आपको कॉल करता होगा ना कि देखिए इससे भी तो आवाम को कितने मसाइल हो रहे हैं। तो चीजें बंद कर देने से आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मैं भी आवाम बन के आपसे बात कर रही हूँ, इससे आवाम को क्या फायदा होगा? आप चीजें बंद करके बैठ जाते हैं, आप एहतजाज करते हैं, फिर आपकी वो रैलियां, वो प्रोटेस्ट, वो पोलिटिसाइज्ड हो जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो आप कोई ऐसा लाहे अमल बताएं हड़ताल के अलावा जो अवाम के काम आ सके, क्योंकि अगर हुकूमत लॉन्ग टर्म नहीं जा रही है तो बिजनेस कम्युनिटी भी लॉन्ग टर्म नहीं जा रही। जैसा कि आपने लाहे अमल का कहा, हमने जो इस साल जनवरी में एक ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एक कॉन्फ्रेंस की जो है,
उसमें तमाम पूरे पाकिस्तान से, जिसमें मुल्क भर के जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे या बिजनेस कम्युनिटी की लीडरशिप थी, उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया और ये तमाम मुतालबात हमने गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए। इकोनॉमिक के गवर्नमेंट हमें जो है इस साल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो है वो कुछ करे, और उसमें पावर के लिए था कि एनर्जी क्राइसिस के लिए जो है गवर्नमेंट एक प्लान दे जाए। जावेद साहब, जो आपने मुतालबात दिए हुकूमत को, उनका थोड़ा सा समरी मुझे बताइएगा, क्योंकि यास्मीन रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। आपकी बात सुनने के बाद उनसे जवाब लूंगी मैं। जी, हमने इनसे जो है जो मुतालबात थे, एक तो ओवरऑल ये था कि जी इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट दे या तमाम सियासी पार्टियां दें और उस पर अमल करें, उस पर अमल को यकीनी बनाएं। एनर्जी सिक्योरिटी प्लान के लिए हमने इनसे कहा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने इनसे कहा, और जो है ये स्टेट एंटरप्राइजेस के लिए हमने इनसे कहा, जिसके मुताबिक फिर इस बजट में कोई बात नहीं हुई। हमने इनसे कहा कि वो 400 से 600 अरब सालाना जो है खा जाती हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। हमारे ये मुतालबात जैसे बड़े क्लियर थे और हमने गवर्नमेंट को हर लेवल पे हर जगह पर पहुंचा दिए जो है। लेकिन जावेद साहब, बस मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आई हैव टू गो टू ब्रेक। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब इन रैलियों में और इन प्रोटेस्ट में अगर सियासी लीडरान शामिल हो जाएंगे तो इन रैलियों की अपनी अवामी हैसियत कितनी डैमेज होगी? आप लोगों की अवामी हैसियत डैमेज नहीं होगी या पोलिटिसाइज हो जाएगी? आप इसकी फेवर में है? नहीं, आप सही कहती हैं, लेकिन हमारे उनसे बड़ी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जी कि वो नून लीग का प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म जो है वो ताजे बरादरी के लिए जो है, अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे आते हैं वो किसी भी पार्टी से हो, ये एक कोइंसिडेंस है कि वो जो है उनका ताल्लुक नून लीग से है। लेकिन अगर हमारे लिए कोई भी मुंतखब नुमाइंदा आता है या कोई भी सेक्टर ऐसा है जो हमारी आवाज को और जायज मुतालबात को आगे बढ़ाने में मददगार होता है, तो हम उनके साथ जो है उनका साथ देने के लिए जरूर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद भट्टी साहब, प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जावेद अख्तर भट्टी आरसीसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत उन्होंने मुतालबात किए, उनमें लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, स्टेट इंटरप्राइज के हवाले से मुतालबात और सिक्योरिटी ऑफ बिजनेसमैन जैसी डिमांड शामिल थे। यास्मीन साहब, आप बताएं कि ये सब कैसे होगा? सिक्योर नहीं है बिजनेसमैन हमारे मुल्क में, वो बेचारा एहतजाज ना करे तो फिर क्या? मैं नहीं समझती कि अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की सिचुएशन अगर आज आप 3 साल पीछे चले जाएं तो आपको यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर नजर आएगी। मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुल्क में एक वो बहुत ही, कल भी कराची के हवाले से खबर बताती हूँ, 12 ताजिरों को उठा लिया गया। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे बहुत बड़े धमाके जिसके फॉरेन इन्वेस्टर जो नहीं आना चाह रहा था, जो कि मुल्क में टेररिज्म की एक फिजा जो थी, उसमें यकीनन बेहतरी आई। आप अगर उस तरफ से देखें, कराची एक अजीब सिचुएशन जो है वो टेंस है, डेफिनेटली उसमें ये नहीं कहा जा सकता। मैं समझती हूँ कि बिजनेसमैन, लेकिन बिजनेस में हुकूमत पॉलिसीज, इनको सपोर्टिव पॉलिसीज तो दे सकती है। बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस खुद ही, जब तक मैं नहीं देखती कि किसी बिजनेसमैन ने हुकूमत के सर पे बैठ के, मैम जब आप उनको उन बेचारों से भत्ता लिया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उनको उठाया जा रहा है, वो यहाँ पे रावलपिंडी पे बात कर रहे थे ना, ये तो रावलपिंडी को चेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, जो सदर साहब उनकी बात कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो बिजनेसमैन को पावर के अलावा, पावर सेक्टर एक एनर्जी सेक्टर जरूर है जो कि बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग में हर्ट करता है, उनकी कैपेसिटी। चलिए पावर सेक्टर पे आ जाते हैं। अहमद मुख्तार साहब कहते हैं कि अब बिल्कुल भी तभी लोड शेडिंग नहीं होगी, और मेरे पास जो टीम है उसने ब्राजील में काम किया है और ब्राजील वाली टीम अब यहाँ पे काम करेगी, तो वो क्या कारनामा बताएगी? अहमद मुख्तार साहब का पहले दिन का स्टेटमेंट मुझे बहुत खुशाइन लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये जो बिजली स्टेटमेंट कोई 10,000 दफा इस तरह के स्टेटमेंट लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर उनकी डायरेक्शन जो उन्होंने पहले दिन की स्टेटमेंट दी, तो मैं समझती हूँ उसमें से यकीनन फर्क आएगा। थेफ्ट और लीकेजेस 30% है इस वक्त बिजली के, और उन्होंने पहले दिन का स्टेटमेंट ही उनका यही था कि ये जो बिजली चोरी है मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको खत्म करूंगा। अगर वो 30% खत्म होकर शामिल हो जाती है सिस्टम में, यकीनन कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। ये तो नहीं होएगा कि ऑल इज रोजी एंड वेल, लेकिन ये जो बिजली की थेफ्ट भी हो रही है ना, मैं समझती हूँ इसको काबू करना सबसे शॉर्ट टर्म मेजर ये है कि इसको पकड़ा जाए ताकि ये जल्द से जल्द सिस्टम के अंदर ये किस किस्म के इकदाम है? मुझे एक पॉइंट बस ऐड करेंगे, फिर आप इसे जवाब देती हूँ। ये किस किस्म के इकदाम है कि चौधरी मुख्तार साहब ने कहा है लाहौर में कि 6 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन की कई घंटे की बंदिश का नोटिस लिया उन्होंने, और MDCNTC के रसूल खान को फौज में मुअत्तल कर दिया 5वें साल में, और 6 ग्रिड स्टेशन का नोटिस अब लिया।
नहीं, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी लानी है ना, जब मिनिस्टर नए आएंगे वो अपने मिनिस्टर आएंगे तो उन्होंने अपनी पॉलिसी। मेरी एक जरा गुजारिश सुन ले, 4.5 साल वो शख्स डिफेंस मिनिस्टर रहा और डायरेक्टली PIA डिफेंस मिनिस्टर के अंदर थी, ही वाज द चेयरमैन। अब उसने वहां पे क्या कर लिया? PIA 4 साल पहले शायद कोई थोड़ा बहुत सिसक रहा था, अब तो बिल्कुल तबाह कर दिया उन्होंने। नहीं यास्मीन साहब, ये मौतली आखिरी साल में आना है। एक और बात आप फिर ले जा रहा हूं, अगर ये जो 6 ग्रेड सेशन फॉर एग्जांपल मिनिस्टर अगर ये समझता है कि जी ये एक बंदा नाअहल है, एक ऑफिसर नाअहल है, उनको पूरा कर, मिनिस्टर हैज एवरी राइट कि वो उसको ट्रांसफर करे या सस्पेंड करे अगर कोई नाअहल है। अगर हम ये नहीं अकाउंटेबिलिटी करेंगे सिस्टम्स की, ब्यूरोक्रेसी में, ऑफिशियल्स में, जहां जहां भी कोई बैठा है इनएफिशिएंसी कर रहा है या करप्शन कर रहा है या काम नहीं कर रहा, तो फिर ये बात नहीं ठहरने वाली। ये जो सेशन की मैं बात कर रही हूँ और जो मौतली हुई है वो आपके सूबे में हुई है, पंजाब में हुई है, तो ये इसका नोटिस शहबाज शरीफ साहब ने क्यों? मैं यही तो कह रहा था कि आप चारों सूबों की निकाल लीजिए, आपकी जो इलेक्ट्रिक थेफ्ट है ना, आप उसकी लाइन लॉसेस निकाल लीजिए। पंजाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेता, सबसे ज्यादा रिकवरी पंजाब से होती है और सबसे ज्यादा ज्यादती भी पंजाब के साथ हो रही है। सबसे ज्यादा जो आपकी लाइन लॉसेज हैं वो हैं आपके फाटा में, कोई बिल नहीं देता। फाटा में तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम लोग बिल देते हैं और वहां पे लाइन लॉसेज देख लें, कराची के आप लाइन लॉसेज देख लें, आप बलोचिस्तान के लाइन लॉसेज देख लें। यानी कि अजीब मंतक है, अजीब इनकी पॉलिसीज है कि जो शख्स एक अदालत को तबाह किया हुआ था। ओवर बिलिंग पे आ जाते हैं, ओवर बिलिंग कैसे खत्म करेंगे आप? ओवर बिलिंग नहीं खत्म हो सकती। ये जो कह रहे हैं ना कि ये अजीब पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज आज की नहीं है। अभी तो फाटा जो है उसको FCR के जरिए और वहां पे खैबर पख्तूनख्वा का और सारे आजाद कश्मीर इन जगहों पे इलेक्शन करवा के तो गिलगित बल्तिस्तान को ये मेन स्ट्रीम में लाया गया है। पहले तो यहाँ पे फाटा के तो ऑन रिकॉर्ड सेक्रेटरी आए थे जब चीफ सेक्रेटरी उनके हमारी मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था कि जी वहां पे बड़ा मुश्किल है बिजली के बिल लेना और बड़ा वहां जान के लाले होते हैं। लेकिन बाकी पंजाब है ना, सिंध तो है ना, बलूचिस्तान है ना। लेकिन देखिए ओवरऑल आपकी अगर 30% है चोरी तो इनर एरियाज में 80% है, वो आके पूरे मुल्क के सिस्टम को जितने इंडस्ट्रियल एरियाज है, मैंने खुद वहां पे शोज किए, वहां पे इतनी बिजली चोरी होती है, तो फिर सैकड़ों कुंडे लगे हुए हैं वहां पे, तो वो चोरी नहीं है, मुझे तो लगता है फाटा ज्यादा चोरी हो रही है वहां पे। ऐसी बात करिए आप, एक दफा जाके तो देखें इंडस्ट्रियल एरियाज में, आप देखें ना अभी आप इसका हल उनके पास मौजूद था। अभी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे ना, फिर ये लोग खुद सोचे कि अगर ये लोग मुल्क के साथ सिंसियर हैं और यकीनन यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि जिन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ और उन पे जिन एरियाज का पॉलिटिकल कंट्रोल है वो आपके इत्तेहादी हैं, फिर इस पे तो आपके ज्यादा जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप अपने इत्तेहादियों से वोट बैंक है, वहां पे बिजली बड़ी चोरी होती है, हटवा दो। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इत्तेहादी हो या कोई भी पार्टी जो भी अगर प्रोटेक्शन कर रही है बिजली चोरों को या गैस चोरों को, तो वो मुल्क के मुझे सिर्फ मैं यासीन रहमान साहबा से निपटना चाहिए। लेकिन अदब के साथ ने पहले दिन ये मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर तो मेरी बात गलत है तो ये गलत साबित कर दें। मैं कहता हूँ जी सबसे ज्यादा रिकवरी, सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा आपके लाइन लॉसेज कम पंजाब में। इंडस्ट्री तो कराची में ज्यादा। ठीक है, अब शेख साहब यहाँ पे कॉल है, कॉल ले लें, उसका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताइए किससे सवाल करेंगे और क्या? मेरा सवाल ये दोनों हमारे पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं और खास तौर से थोड़ा सा आपसे भी है, आप इन हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों लाती हैं टीवी पे? ये इतने अच्छे लोग हैं, शाम को रोजाना सारे आप टॉक शोज में इनको बुलाते हैं, इनको लड़ाते हैं, इनको तंग करते हैं। ये आप ही का पढ़ा लिखा मीडिया था जो कि कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब गलत हैं, दस्ती साहब को उन्होंने सपोर्ट किया, 46,000 वोटों के साथ वो जीते थे। सेकंड टाइम वो 64,000 वोट्स के साथ जीते। आप लोग बजाय इनके कि इनको बुलाते हैं और गैस के इश्यूज और बिजली के इश्यूज और शाम को अपने तमाशे लगाते हैं और अपने टॉक शोज के अंदर आप ये तमाशा नहीं हो रहा। अगर आपने प्रोग्राम शुरू से देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस वक्त से ये बात कर रही हूँ कि आवाम को क्या मिला, क्योंकि मेरा ख्याल है बाकी टॉक शोज का गुस्सा मेरे शो में निकाल रहे हैं। आई एम सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं, माय पॉइंट इज ओनली व्हाई डोंट यू गो इनटू द स्ट्रीट्स
at the end of the day it's going to be the ballot I have been going to the ballot. streets. अगर आपको शेख साहब से या यास्मीन साहब से कोई सवाल पूछना है तो जरूर बताएं. I have very well taken your point. प्रोग्राम में कॉल करने का बहुत शुक्रिया. वो तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको प्रोग्राम में बुलाने का कोई फायदा ही नहीं है. ये भी एक तबका है आवाम का जो कि मैं काफी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाह रही हूँ. बतूल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं. जब आपको इनफैक्ट एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं. प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन. इस वक्त नजीर साहब कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं. बताइए नजीर साहब किससे क्वेश्चन करेंगे और क्या बोलेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो नजीर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. जी आपको आवाज आ रही है? जी जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. पूछिए. जी मैंने पूरा शुरू से तो प्रोग्राम आप लोगों का नहीं देखा, बट थोड़ी देर पहले ही से मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम. आपकी दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट से मैं बड़े ही अदब के साथ एक सवाल करना चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, अगर मुझे वो सुन पा रहे हैं. देखिए एक तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, एक तो इनमें आपस में पेशेंस नहीं होता एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए. एंड सेकेंडली ये कि जब एक गवर्नमेंट आती है तो जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो पहली गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई होती है तो वो उसे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करती, सिर्फ ये सोच के कि जी वो दूसरी मुखालिफ पार्टी की हम अब आए, हमारा अपना जो है वो मैनिफेस्टो होगा. ठीक है, मैनिफेस्टो हर पार्टी का अलग होता है, लेकिन जो एक अच्छी पॉलिसी जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाई हुई है या अपने मुल्क के लिए बनाई हुई है जो कि इन द लॉन्ग रन मुल्क को फायदा दे सकती हैं, उसको क्यों नहीं वो कैरी फॉरवर्ड करते. बस ये दो सवाल. ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. मैं दोनों कॉलर्स के क्वेश्चंस कंबाइन कर लेती हूँ. पहले लाहौर से फवाद साहब ने मैं कॉल की थी, उनका ये क्वेश्चन ये था, अगर मैं इनके अल्फाज रिपीट करूँ तो उनका कहना था कि पॉलिटिशियंस जब बैठ जाते हैं तो तमाशा ही होता है कि ढंग की बात तो हो नहीं पाती. एक ये पॉइंट. और दूसरा जो नजीर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि लैक ऑफ पेशेंस है, आप लोग ना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं ना एक दूसरे की पॉलिसीज को बर्दाश्त करते हैं. अगर एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरे गवर्नमेंट की जो बेहतर पॉलिसीज है उन्हें भी खत्म कर देती है. दोनों साहबान का तकरीबन एक जैसा ही सवाल है. तो इसमें मैं आपसे ये इन दोनों साहबान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वेरी करता है. वेरी इस तरह करता है कि आप अगर लॉजिकली बात कर रहे हैं, दूसरा लॉजिकली उसका जवाब दे रहा है, तो फिर तो उसमें कोई मेरे ख्याल में तेज़ी नहीं आएगी, तलखी नहीं आएगी. अब जैसे नज़ीर साहब भी कह रहे थे, अब ये बात करूँगा तो शायद यास्मीन इस बात पर ज़रा नाला हो जाएगी. तो अब ये मुझे बताएं कि 5 साल गुजरने के बाद इस गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा काम है जो लॉन्ग टर्म है जिसको मैं लेके अगर चलूँ, अगर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की आ जाती है तो मुझे तो कोई ऐसा काम वैसे मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ, वॉर ऑन टेरर को तो आगे नहीं लेके चलेंगे? वॉर ऑन टेरर को मेरे बस में हो, मैं बतूल आपको एक बात बताऊँ, मेरे बस में हो तो मैं उसको फौरी तौर पर मेज पे बैठ के उसको हल करने की कोशिश करूँगी. ठीक है. देखिए आपने इसको इस मामले को मत छेड़िएगा, इसमें मेरा मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है. मैं ये समझता हूँ मुझे पाकिस्तान के रहने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके लिए अगर मुझे किसी से गुफ्तगू करनी पड़ती है, मुझे किसी के साथ बैठ के पढ़ना. आज तक हम ये डिफाइन नहीं कर सके कि जी हैं कौन लोग, ये आपके खिलाफ क्यों है. ठीक है, डिस्कशन से डेविएट हो रहे हैं. मैं आप इस बात का जवाब दें कि नहीं, मैं समझती हूँ उनके बड़े पर्टिनेंट पॉइंट हैं. कराची से आपके जो कॉलर और लाहौर से भी ऑब्वियसली वही सवाल था. मुझे उनका नाम सॉरी नजीर साहब का. नजीर साहब आपका सवाल बिल्कुल मैं समझती हूँ बहुत बेहतर सवाल था, बेहतरीन सवाल कहना चाहिए. टॉलरेंस की यकीनन जो कमी है, अगेन मैं तो कहूंगी कि मीडिया ने एक हाइप जो क्रिएट कर दी हुई है ना कि 2-3 लोगों को बिठा के पॉलिटिकल उस पे. लेकिन मीडिया 90 की दहाई में मीडिया 71 मीडिया पे इतनी प्रोजेक्शन शोर हंगामे को ना मिले ना तो हम सब लोग ठीक हो जाए. हम लो टोन में, नेचुरल टोन में आके बातें करें जो कि अवाम के मफाद में भी हो, इस मुल्क के मफाद में भी हो.
सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज के साथ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसा ही कहना गलत है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ गुड पॉलिसीज ऑब्वियसली जो पॉलिसी, क्योंकि आप देखें अब हमारा मुल्क नजीर साहब अभी इन्फेंसी की स्टेज पे है, जमहूरियत देना बंद कर देता है, पूरे शो में आपने यास्मीन साहब कोई नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं लेकिन आप ये है कि अगर आप आज भी जो जिन मुल्कों में जमहूरियत को 100 साल हो चुके हैं ना, या 80 ईयर्स प्लस, कैसे आनी चाहिए, ये तो आपने एडमिट कर दिया कि नहीं है, लेकिन है, मतलब इसको खत्म कैसे करना है? उसको खत्म फिर मैं यही कहूंगी कि आप लोगों, आपसे मेरा मतलब है कि जो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो इतनी वो प्रोजेक्शन और वो हाइप नहीं दे, वो सॉलिड इश्यूज को लेके आए, सॉलिड रिकमेंडेशंस लें, और चीखमदार जो गेस्ट करे उसको आइंदा मत बुलाएं, आइंदा मत इनवाइट करें। देखिए एक आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना, और हमने भी टॉलरेंस पैदा करनी है, दोनों तरफ से एक माहौल क्रिएट करने की बात है। बट और माहौल क्रिएट करने का इनिशिएटिव मीडिया को लेना चाहिए, शेख साहब दोनों को लेना चाहिए, हम भी लेंगे, मीडिया भी लेगा। मेरा थोड़ा नुक्ता नजर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, मतलब कोई भी अगर होता है और वहाँ पे उस प्ले किया जाता है, तो आप एक्सपीरियंस लोग हैं, आप सियासत करते हैं, आप अपने हल्का एक इंतखाब को एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए। नहीं, क्यों हो जाए रेटिंग? मुझे आपके लिए नहीं करना, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने व्यूज को, मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये बताना है कि मैं एक बाइखलाक आदमी हूँ, मुझे अपने इखलाक के दायरे से बाहर नहीं निकलना। अगर आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप खातून हैं, बेशक मेरा आपका एक रिश्ता भी होगा, कोई मेरी आपकी शनासाई, मेरी आपके तल्लुक, लेकिन एक खातून होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका एहतराम भी करूं, मैं एहतराम भी करूं, अपनी अल्फाज, अपने जज्बात पे काबू पाऊं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आप हमेशा, मैं कहता हूँ कि मैं अगर आप किसी को बुरा भी कहना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपने अल्फाज का अच्छा ठीक है, मैं मुझे आप दोनों की बात समझ में आ गई। मुझे बताएं कि नेचुरल रिसोर्सेज का आवाम से कितना डायरेक्टली रिलेशन है उनकी तरक्की के लिए, क्योंकि मैंने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे बार बार हुकूमतों की पॉलिसी बहुत अट्रैक्ट करती है, जो बहुत रिपीट होती है कि हमने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर उनको अपने तरीके से इस्तेमाल छोटी सी बात मैं देखिए, गैस आपका सबसे बड़ा इस वक्त नेचुरल रिसोर्स है ना। मैं तो आपको दे छोटी सी बात सुन ले, मेरी बात सुने, जब सीएनजी स्टेशन लगे 2000 में, आप दोनों से बहुत अदब से एक स्टेटमेंट शेयर कर लूं। वजीर पेट्रोलियम ने कहा है बड़ी आजी से, देखिए मैं तो आपको 7 दिन गैस नहीं दे सकता। अब ये क्या है? देखिए मेरी बात सुने, गैस तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना, अल्लाह ताला ने जितनी गैस इस मुल्क में जमीन में रखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि उसको निकालो खुद। नहीं, एक्सप्लोरेशन के लिए तो इस वक्त बहुत काम हो रहा है लेकिन उतनी गैस नहीं निकली। जब 2002 में जिस बुरे तरीके से सीएनजी बिकी है ना, मैं कहूंगी आपने अपना सिल्वर जो है ना कौड़ियों के मोल बेचा है उस वक्त। सीएनजी इस पे बैन होना चाहिए, यकीनन बैन होगी तो इंडस्ट्री को और डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस मिल सकेगी। गैस के ज़खायर मुल्क में खत्म है, ईरान पाइपलाइन जो आनी है वो उसका मुआहदा हो गया, पर गैस के ज़खायर मुल्क में खत्म हो गया, कुछ नहीं ऐसा कुछ है। देखें बतूल, अंदर सारी गैस किसी को देते नहीं। हमने 2000 में आप चेक करें कि कितने गैस के ज़खायर खत्म हो गए। नेचुरल जो पानी भी चश्मों में आता है ना, एक वक्त आता है आप बेदर्दी से इस्तेमाल करते हो, गैस की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है आपकी उस तरह सप्लाई तो नहीं है ना, नेचुरल है। पेट्रोल ऑयल तो आप बाहर से मंगा लेंगे चाहे वो $200 बैरल पे हो जाए, तो गैस जिस बुरे तरीके से शुरू में इस्तेमाल हो, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बतूल। अब देखें बात ये है, यास्मीन रहमानत साहब का तल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, इनका हक है, फर्ज बनता है पीपल्स पार्टी को डिफेंड करें, मैं आपको साबित करता हूँ सीरियसली। बतूल मैं आपको ये बात जरा सुने, आज आपका निकालने की कमी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शायद कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं मैम, लेकिन वो कर नहीं रहे, निकाल नहीं रहे। आप गलत बहस हो पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि 2008 में आपको हुकूमत मिल गई पीपल्स पार्टी को। 2008 से अगर आप ये समझते थे गैस आपके मुल्क में कम हो रही है, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूँ
کہ 2008 سے لے کے 2012 تک آپ کو نئے لائسنسز ایشو نہیں کرنے چاہیے تھے. نہیں کیے وہ پچھلے جو تھے جن کے پاس این او سی لیکن مجھے یہ لگتا ہے میں یہ دو باتیں کرنے جا رہا ہوں, اس میں آپ اسٹڈی کر لیجیے, اس میں آپ اسٹڈی کر, دو باتیں سے شیخ صاحب جلدی سے بریف کیجیے, مجھے بریک پہ جانا. میں صرف آپ کو یہ جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہیں 2008 سے لے کے 2012 تک برباد کی ہے لائسنس. نہیں بالکل نہیں کی. اب میں آپ کو ریکارڈ لا کے دے دوں گا جو منسٹری سے ایشو ہے, اوگرا سے اور منسٹری سے ایشو ہے. ایک بات اور, بات یہ ہے کہ اس ملک میں گیس کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل گیس کی کمی نہیں ہے, ختم کبھی بھی نہیں ہوئی. کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد, اسی پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین ایک کالر ہے ملتان سے, بنی ایس ایچ بنی صاحب. جی بنی صاحب بتائیے کیا پوچھیں گے؟ ہاں میں بات نہیں پوچھوں گا, میں یہ بات میں پوچھوں گا نہیں, میں یہ کہوں گا تمام چینل والے جو ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں جب کال ڈراپ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کال ڈراپ ہو گئی. اب سے آپٹک فائبر سسٹم میں کال ڈراپ بالکل نہیں ہوتی, بند کی جاتی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ عمران خان اور یہ جو مشرف ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں سونامی اور زلزلے کی بات کرتے ہیں. سونامی اور زلزلہ جو ہے وہ آزاد الہی ہے, تو یہ آزاد الہی بن کر نازل ہو رہے ہیں عوام پر. جبکہ ان کے عمران خان نے جب ہاسپٹل بنایا, زمین نواز شریف نے دی تھی, اس وقت انہوں نے فلیٹ سے نہیں بیچا اپنا, عوام کے چندوں کا پیسہ وہ بنایا ہے انہوں نے ہاسپٹل. اور وہ بنی صاحب آپ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں لٹرلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مجھے آپ کی ایموشنالٹی کنوے ہو گئی ہے. انفیکٹ شیخ صاحب کو سمجھ میں آ گیا آپ نے کیا کہا. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ ہی کے سوال سے کنٹینیو کرتے ہیں. شیخ صاحب دو باتیں میں ایڈ کر دوں. ایک تو پہلے انہوں نے بریک سے پہلے کہا ہے, آپ نے بہت ہی خطرناک بات کر دی ہے کہ ملک میں گیس ختم ہو گئی ہے اور ایک بھی کوئی لائسنس نہیں دیا گیا ہے. اور یہ کالرز کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ اور سونامی تو عذاب الہی ہے, اس سے ملک میں موسٹ پروبیبلی ترقی کیا ہوگی. یہ بڑی نیکی کا کام ہوگا اور یہ آپ بڑے آرام سے کر سکیں گی. آپ ذرا پچھلے 4.5 سال کے جتنے لائسنسز ایشو ہوئے ہیں, میں سی این جی کی بات کر رہا ہوں, جتنے لائسنسز ایشو ہیں آپ ان کی ایک لسٹ منگوا کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتا چلے گا. ایک بات اس کو بھی چھوڑ دیجیے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ کے ملک میں جو گیس اس وقت اس کو کہتے ہیں ہم کلیئر گیس, اس کی بی ٹی یو اس کا زیادہ ہوتا ہے, اس کی مطلب روشنی زیادہ ہے, اس کی تپش زیادہ ہے. یہ یوں کہہ لیجئے سادے لفظوں میں. ہمارے ملک میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, آپ کسی اپنے سورس سے پتہ کر لیجئے, ہمارے ملک میں گیس کی کمی نہیں ہے. اس ملک میں گیس انتہائی تعداد میں موجود ہے, اور اس کو جو گیس جس کی بات ہے اس کا بی ٹی یو کم ہوتا ہے, لو بی ٹی یو گیس ہوتی ہے, اور اس کو آپ کروڈ اس کا نام لے لیجیے, اس کو شٹ گیس کہتے ہیں. اور وہ کیا ریویل کرنا چاہتے ہیں آپ پروگرام میں بریک سے پہلے جو کہہ رہے تھے؟ میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گیس جو ہے جس کو لو بی ٹی یو گیس ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں امریکن اس کو شٹ گیس کہتے ہیں, اس کی اتنی بہتات ہے اس ملک میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے نہیں نکالنی بابا, میں نہیں نکال سکتا. آپ کمال کرتے ہیں, آپ نے آگے بھی بات کر دی, پنجاب سے کیسے آپ نے آگے بھی بات کر دی ہے. بات یہ ہے پلیز ایک کوشچن کریں, اس کو کمپلیٹ کرنے دیجیے. ٹھیک ہے, مجھے ایک پوائنٹ کرنے دیں, آپ ہی کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک کوشچن کرنے دیں بس. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2012 میں اب آ گئے, آپ 2012 میں کتنے نارمل ریلیکس پوسچر میں کہہ رہی ہیں دیکھیں جی گیس ختم ہو گئی ہے. 2008 میں کیا آپ لوگ اتنے فار سائٹڈ تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 2012 میں گیس ختم ہو جائے گی؟ آپ نے ریکارڈ نکلوالے پیٹرولیم کی جب بھی منسٹریز کی میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ گیس کے ذخائر بہت کم ہو رہے ہیں. اسی لیے ایران پائپ گیس, جو پاکستان ایران پائپ گیس پائپ لائن پہ اتنا زیادہ کام ہوا, تاکہ کیونکہ پتا تھا کہ ملک میں گیس کی شارٹیج ہے. ٹھیک ہے, شیخ صاحب ایک کال لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. جی کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں رانا اکبر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی میڈم میں نے ان سے سوال کرنا تھا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے 2012 کا 12-13 کا, اس میں سرکاری ملازمین کو 20% دیا گیا. یہ ہماری پارٹی یعنی دونوں پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ ہڑتالیں چلی جا رہی ہیں پچھلے 10 دن سے. کوئی کسی سیاستدان کو تو فکر نہیں ہوئی کہ وہاں پہ آ کے
किसी की दाद रसी कर दें। ये लोग टेलीविजन पे बैठ के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं, किस वजह से? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस लेकिन है आपका कि- कॉज क्या है? मुझे अपना कॉज जरा दोबारा बताइएगा, किस वजह से सरकारी मुलाजिमीन का जो कॉज है वो दोबारा बताइएगा। जी ऐप का जो हड़तालें किए जा रही है पाकिस्तान में, चार्टर ऑफ डिमांड पे इनकी जो है वो नहीं किए गए, मुतालबात उनके मंजूर नहीं किए गए। अच्छा, तो उस हवाले से ये जो हड़तालें कर रहे हैं, अवाम रोडों पे बैठी हुई है। 10 दिन से हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बंद किए हुए हैं, दफातर बंद किए हुए हैं, कोई भी सियासतदान उनके पास चल के नहीं गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि पॉलिटिशियन स्पॉट पे नहीं जाते। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डिमांड क्या थी? डिमांड उनकी ये थी कि जो हड़तालें हो रही हैं और जो लोग सड़कों पे, कभी कोई पॉलिटिशियन आके नहीं, मारवी मेमन साहिबा तो बहुत ज्वाइन करती है आके, आप लोग ज्वाइन नहीं करते। डिमांड भी तो बताए ना, किस डिमांड पे हड़ताल हो रही है? कहना चाह रहे थे कि ओवरऑल जनरलाइज करके बात करते कि जितनी भी हड़तालें हो रही है, पॉलिटिशियंस कितना ज्यादा कि शहबाज शरीफ के अलावा, मारवी मेमन के साथ उनके अलावा ज्वाइन करें। डिपेंड करता है कि ये कौन सी आप डिमांड कर रहे हैं और किस गवर्नमेंट से कर रहे हैं आप, और आपका मकसद क्या है। मुल्तान से तो मैं हल्का तो आप लोगों का लगता है। मैं समझती हूँ कि जितनी मुल्तान में डेवलपमेंट हुई है, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का अपना हल्का है, उनके बेटे का, उनके भाई उसी एरिया से नहीं जाती है, नहीं जाती नहीं है। 3 वहां से मेंबर्स होंगे पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के लिए डिलीवर किया है, और उनका डेवलपमेंट मुल्तान में जो है वो बहुत कहने के मुल्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अब उसके बावजूद अगर इनकी कोई डिमांड है तो मैं समझ नहीं सकी कि उन्होंने स्पेसिफिक कुछ उनका ये कहना है कि why the politicians they can't understand and why they can't come on the spot। देखिए, पॉलिटिशियन ने तो घर घर जाके वोट लेने हैं, वो तो हर वक्त होता ही सड़कों पे या अपने ऐसे आवाम के बीच में है, लेकिन हर वक्त अगर सड़कों पे रहेंगे तो कमरों में बैठ। अच्छा, यास्मीन साहब और शेख साहब के प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा में आप दोनों से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। शेख साहब आप जवाब दीजिएगा पहले। क्या मसाइल जो ग्रास रूट लेवल को इफेक्ट कर रहा है, आप चाहे सूबे बनाए यास्मीन साहब, आप चाहे 18वीं तरमीम लाएं, आप चाहे अमेरिका से जितनी मर्जी नेगोशिएशन कर लें, आप IMF से कर्जा लेके आ जाएं, आप लोगों के पावर प्लांट्स लग जाएं, लेकिन मेरे घर अगर बिजली नहीं आ रही तो मुझे आपकी बातों से क्या फर्क पड़ता? शेख साहब आप बताइए। देखिए, मैं वही आप भेज कर रहा हूँ, 4.5 साल का अरसा बहुत अच्छा था। अगर आपने कोई उसमें काम किया होता तो आज ये दिन आपको देखना ना पड़ता। आप लोगों के, मैं गिन के आपको बता देता हूँ, आप देखें ना, जैसे थरकोल का मामला है, थरकोल का मामला भी आज तक समझा नहीं जा सका, उसको आप समझ ही नहीं पाए, उसको आप टेक्निकली उसमें एक फ्लॉ है जो आप उसको रिवील नहीं कर सके, उसकी आप रिजल्ट्स ले नहीं सकेंगे कभी भी। उसकी बेसिक वजह यह है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि उस थरकोल में परसेंटेज सल्फेट बहुत ज्यादा है, और परसेंटेज सल्फेट ज्यादा जब होगी तो उससे आप इस तरह गैस या इससे आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा खतरनाक तरीका है। अब दूसरे पास आप आ जाएं, आपके पास एनर्जी जो आप ले सकते थे वो ले सकते थे आप विंड एनर्जी, जो आपके पास दुनिया में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, जो आप लॉन्ग टर्म देखें ना, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। मैं उनको फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म बातें तो करनी पड़ेगी। लेकिन हमें इस वक्त इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है। इमीडिएट रिलीफ आया 4 साल में, कोई एक इमीडिएट रिलीफ बता दें। बिल्कुल, उसमें यही है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपकी इस वक्त 14-15 हज़ार की जितनी भी इंस्टॉल्ड है, उसकी अल्लाह करे कि ये फिजिकल स्पेस इतनी हो जाए कि पेमेंट्स करके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चल जाए तो आपका शॉर्टफॉल बहुत कम रह जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है बिल्कुल हुकूमत के एजेंडे में है, भाषा ढमेर बहन डैम हो या दूसरे डैम्स के लिए इस बजट में भी, पिछले बजट में भी पैसा रखा गया, उन पे बिल्कुल काम हो रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएट रिलीफ हम चाहते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए, वो भी मोहतरमा शहीद ने जो IPP लगाया उसके बाद अभी तो बिजली की तरसील का मामला है, अभी तो लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो रही, उसके लिए हड़तालें और जुलूस से चर्चे कर रहे हैं। यास्मीन आप समझ नहीं रही, जब आप बिजली 24 घंटे देने की पोजीशन में आएंगी, उसके बाद तो एक खौफनाक आएगा आपका एक नहीं IPP, उसमें IPP 26 रुपए का एक यूनिट आप लेके हम किसको देना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं इस मुल्क के साथ? IPP जो है उनको आप अपने गले का जो फंदा है उसको निकालें बाहर, अपने आबी ज़खायर बड़े करें, आप अपने आबी ज़खायर बड़े करें, आप कोल से एनर्जी बनाएं, आप विंड से एनर्जी बनाएं, आप सोलर एनर्जी पैदा करें। बहुत शुक्रिया शेख साहब और बहुत शुक्रिया यास्मीन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, यास्मीन साहबा का ही एक सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ, दैट ऑल दिस सिचुएशन इट विल टेक सम टाइम। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।